stop for a while at a small orchard, and that is where all the food is waiting for you. Some of you might be familiar with the name of Ghalib, and Ghalib had traveled from Agra to Calcutta. He was trying to get the pension that was awarded to his father, which had been stopped. He wanted it revived. During that journey, he went and stayed at Amroha, and he has written extensively about the sweet tasting water of the river and of the rohu fish that used to inhabit that river, and the mangoes that were cultivated there. And Amroha is even today filled with all kinds of mango orchards and a huge variety of mangoes that you don't get to see in Delhi. My experience was so much fun. So I came to India actually just for a month. I'm coming from the US, and this is like something that I've been looking forward to the whole entire month, and I really enjoyed it. I think the best part was this part where we were going around and we got to try mangoes, and over there where everybody he tells us about the different types of mangoes, and you get to taste the ones that you want, because like I'm so used to just like, oh, it's a mango, but then you don't know that there's so many different types of mangoes. फर्स्ट ट्रिप है मेरी, एंड जो सारी स्टोरी सुनने को मिली, डिफरेंट हिस्टोरिकल फैक्ट्स कि शाहजहाँ को मैंगोज़ कितने पसंद थे, ये सब और भी इंटरेस्टिंग हो गया ट्रिप। एक तो दिल्ली के आसपास ही इतनी सुंदर जगह है, इतना नेचर के पास है, इट वाज नाइस, एंड द मैंगोज़ वर अ ट्रीट। इतनी वैरायटी ऑफ मैंगोज़ तो इवन आई डिड नॉट नो एग्जिस्ट। दिल्ली में वही 3-4 टाइप के मैंगोज़ होते हैं, and the whole experience was great. It just doesn't feel like, you know, we are so close to Delhi and here we are in a very different location. जो यहाँ पे आके हमने मैंगोज़ खाए, इतने ज़्यादा फ्रेश तोड़ के बगीचे के अंदर, वो जो एक एक्सपीरियंस है वो आपको कभी नहीं मिलता है, और मुझे लगता है धीरे धीरे ये ख़त्म हो रहा है। इट इज़ अ लॉस फॉर आवर जनरेशन्स। जो आगे वाली जनरेशन्स हैं उनको कभी एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप देख रहे हो वो पेड़ से कैसे तोड़ रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। मैंगो सबके फेवरेट होते हैं, लेकिन दिल्ली में इस टाइप के मैंगो नहीं मिलते। वो एक्सपीरियंस जो है ओवरऑल वो नहीं होता। तो डेफिनेटली ये बहुत ही यूनिक और अच्छा था, एंड किसी तरह से हम इसको प्रिजर्व करना चाहिए आगे के लिए। It's not about all about eating mangoes. It's about seeing the mangoes on the tree that really amazes you, and the beauty and different varieties of mangoes that you see in the orchard. I saw here many varieties of mangoes. Eating is one part of your experience, you know. Eating in this middle of an orchard with no infrastructure at all,
So of course, taste-wise, food was good, fresh. Really, I really like this besan ka paratha, besan ki roti, mango ki chutney. That mango chutney was really good, and biryani, of course. I think this was a Muradabadi style of chicken biryani. So I'm a biryani lover, so I was really keen to explore this Muradabadi biryani. इसको भी आम खरीदने हैं. You buy your mangoes and give him the money, and then they'll be carried into the bus. I suggest that you write your names on your boxes. आम के बारे में बहुत सारी चीज़ें थी जो नहीं मालूम थी, आज पहली बार मालूम पड़ी है. ग्राफ्टिंग की टेक्निक थोड़ा सा और अच्छे से समझे हैं, और आम के बगीचे में पहली बार आए हैं, मैंगो ऑर्चर्ड में, और अलग अलग तरह के आम खाए. अच्छा एक्सपीरियंस था, अच्छा ग्रुप था, अच्छा एनवायरनमेंट था, और लकीली मौसम भी बहुत अच्छा आज. तो आउट एंड आउट मतलब पूरा बहुत अच्छा दिन बीता. सोहेल हाशमी जी अपने आप में एक नामी इंसान है, तो अगर वो फेसबुक पे डालते हैं तो लोग तो कि वो ग्रुप के लीडर हैं उसी पे आ जाते हैं. आम के बगीचे में मैं कभी नहीं गया, और मैं आम का शौकीन बहुत हूँ, तो मुझे लगा है कि अगर इतना बड़ा शौकीन मैं हूँ और मैं मौके पे मतलब उसको लैप अप नहीं किया तो फिर वो तो बेवकूफ़ी होगी. दिल्ली में तो हमें ये नहीं मिल सकता, तो क्या किया जा सकता है वो ये है कि साल में एक बार आप एक आम के बगीचे में आइए और लोगों को बताइए कि आप भी ऐसा एक्सपीरियंस कीजिए. We had a fantastic time, very different from the usual humdrum of the city life, very refreshing. Best part I think जो मैंगो टेस्टिंग था, हम लोगों ने नॉर्मली शहर में 2 या 4 वेराइटीज़ खाई होती है जिनका टेस्ट बहुत फ़र्क होता है, जो यहाँ पे नेचुरल टेस्ट हमको मिलता है. सो द मैंगो टेस्टिंग एंड जो सोहेल साहब ने इसके पीछे का पूरा हिस्ट्री बताया, दैट वाज आई थिंक दैट टुक द केक. जैसा सोहेल साहब ने बताया कि ज़्यादातर जो आम हैं वो जिस शहर से में पहली बार उगाए गए वहाँ से उनका नाम पड़ा, लेकिन लंगड़ा का नाम और अल्फांसो का नाम कहाँ से आया, तो वो बता रहे थे कि कोई बेगर था जो लंगड़ा था, उसने शायद पहली बार उसका ग्राफ्ट लगाया. और अल्फांसो क्योंकि अल एक अरबिक प्रीफिक्स है, तो फांसो प्रॉब्ली केम फ्रॉम द वर्ड फाइन, सो वहाँ से उसका रूट है, लेकिन जिसको हिंदी में हम लोग हापूस बोलते हैं. So yeah, that was a most interesting part for me. I came with my 11-year-old son who has, who although he grew up in a tier 2 city, but now he's living in a metropolitan city, and this has been a very enriching experience for him. And I think the visuals are going to stay with him for a lifetime. He's really experienced things in the raw sense, and इस टाइप का उसने कभी एक्सपीरियंस नहीं देखा था. मेरे ख्याल से और ज़्यादा लोगों को आना चाहिए और बच्चों को लाना चाहिए, जिससे कि वो जाने कि कहाँ से शुरुआत होती है. और बगीचे में बहुत ही मज़ा आया है, बहुत अलग अलग वैरायटी के देखा हमने. सिर्फ आम ही नहीं था यहाँ पे, कटहल देखा, पटहल देखा, मतलब काफ़ी सारे फ्रूट्स यहाँ पे हमने देखे जो आमतौर पे सिटी लाइफ में नहीं मिलते हैं देखने को.
मुझे वैसे चौसा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ नए टाइप के मैंगोज़ भी खाए जो कि बहुत अच्छे थे। एक हुस्सनारा मैंगो है, वो बहुत अलग टेस्ट है उसका, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे एक हेम सागर बहुत अच्छा लगा और 2-3 और अच्छे लगे पर उनका मैं नाम भूल गया हूँ। My favorite remains Langra, Dashehri, Chausa. This is the gulab jamun. Gulab jamun was it was so sweet. It was so good. Roshnara, which is a very small variety and it's very beautiful to look at and even better to taste.